نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ سلسلہ ہے سلسلہ تفہیم اشعار پر مشتمل، جس میں ہم مختلف فارسی شعراء کا فارسی کلام آپ کے لیے لے کے حاضر ہوتے ہیں اور اس کا ترجمہ اور مختصر وضاحت پیش کرتے ہیں۔ آج ہم نے آپ کے لیے جس کلام کا انتخاب کیا ہے یہ بابا چلاسی آپ کا کلام ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اسی کلام کا ترجمہ اور مختصر وضاحت پیش کریں گے۔ توجہ سے اسکرین کے اوپر آج کے اشعار دیکھیں۔ بابا چلاسی آپ لکھتے ہیں: زیان ظاہری حب جہان است، زیان ظاہری حب جہان است، چرا یارا رخت سوے زیان است، چو بینم حال تو آ وقت گویم کہ یک طفل سوے چاہے دوان است، چو میدانی کے لازم ہست مردن، چرا ناداں نہ کردی کار کردن، ز تو آمور نادانست دانا، کہ داند دانا در سوراخ بردن۔ نہایت ہی خوبصورت اشعار، توجہ سے اس کا ترجمہ اور مختصر وضاحت سماعت فرمائیں۔ پہلے شعر کا لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ بابا چلاسی آپ لکھتے ہیں: زیان ظاہر، زیان کہتے ہیں نقصان کو، ظاہر کا معنی واضح، یعنی واضح نقصان ہے، این کا معنی یہ یا اس، یعنی اس میں یا اس کا واضح نقصان ہے یا اس میں واضح نقصان ہے۔ کس میں؟ حب جہان است، حب جہان میں، حب دنیا میں، دنیا کی محبت میں واضح نقصان ہے۔ دنیا کی محبت میں، دنیا کی باغ دوڑ میں، دنیا کی طلب میں، دنیا کی ہرس میں، دنیا کی تمنا میں، دنیا کے لالچ میں، یعنی محبت دنیا میں واضح نقصان ہے، محبت دنیا میں واضح نقصان ہے۔ چرا یارا رخت سوے زیان است، آپ کہتے ہیں چرا کا معنی کیوں، یارا اے یار، اے دوست، اے محبوب یا اے دوست۔ رخت یہ اصل میں ہے رخ کہتے ہیں چہرے کو رخ کہتے ہیں، اور تا اس میں مخاطب کی واحد حاضر کی ضمیر ہے۔ رخت تیرا چہرہ یا تیرا دھیان یا تیری توجہ۔ چرا یارا رخت، اے دوست، اے محبوب، کیوں تیری توجہ، سوے کا معنی طرف، کیوں تیری توجہ طرف ہے کس کی؟ زیان یعنی نقصان، کیوں تیری توجہ نقصان کی طرف ہے، یا تیری توجہ کیوں نقصان کی طرف ہے، تیری توجہ کیوں نقصان کی طرف ہے۔ اب دوبارہ پڑھیں: زیان ظاہر حب جہان است، اس جہان کی محبت یعنی محبت دنیا واضح نقصان ہے، محبت دنیا میں واضح نقصان ہے۔ چرا یارا رخت سوے زیان است، اے دوست، اے میرے دوست، اے یار، تیرا رخ کیوں نقصان کی طرف ہے؟ جب تو جانتا ہے کہ دنیا کی محبت میں نقصان ہے اور دنیا کی محبت یہ گھاٹے کا سودا ہے اور نقصان کا سودا ہے، تو پھر کیوں تیرا دھیان اور کیوں تیری توجہ دنیا کی طرف ہے، دنیا کی طلب میں ہے، دنیا کے لیے تو کیوں حریص بنا ہوا ہے، جبکہ تو جانتا ہے کہ یہ گھاٹے کا سودا ہے اور یہ نقصان کا سودا ہے، یعنی محبت دنیا دل میں پیدا کرنا۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا: تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، کہ تم دنیا کا مال چاہتے ہو، تم دنیا کا مال چاہتے ہو، جبکہ اللہ تم سے آخرت چاہتا ہے۔ تم دنیا کی متاع چاہتے ہو، تم دنیا کے پیچھے دوڑتے ہو، جبکہ اللہ آخرت چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم آخرت کے لیے کوئی ذخیرہ اکٹھا کرو، اپنا
सामान आखिरत के लिए जमा करो, जबकि ए इंसान तू दुनिया के पीछे मारा मारा भागता है, दुनिया के पीछे तू लगा हुआ है और मोहब्बत दुनिया में तू गिरफ्तार है। तो इसलिए आपने फरमाया कि ज़ियाने ज़ाहर ई हुब्बे जहान अस्त, कि इस दुनिया की मोहब्बत में वाज़े नुकसान है, मोहब्बत दुनिया में वाज़े नुकसान है। चिरा यारा रुखत सूवे ज़ियान अस्त, ए दोस्त फिर क्यों तेरा चेहरा, क्यों तेरा रुख और क्यों तेरा ध्यान इस नुकसान की तरफ है। उम्मीद है कि पहला शेर आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलते हैं आज के दूसरे शेर की तरफ। दूसरे शेर में बाबा चलासी आप लिखते हैं, चुबीनम हाले तू आ वक्त गोयम कि यक तिफले सुवे चाहे दवानस्त। आप लिखते हैं कि चुबीनम जब मैं देखता हूँ, बीनम ये दीदन मस्दर से वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, फेल मुजारे वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। दीदन का माना देखना और बीनद इससे फेल मुजारे आता है। बीनद से आप गर्दान करें तो यूं गर्दान होगी, बीनद बीनंद बीनी बीनेद बीनम बीनेम। तो बीनम ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। चु बीनम जब मैं देखता हूँ, हाले तो तेरा हाल, जब मैं तेरा हाल देखता हूँ, आ वक्त उस वक्त, गोयम मैं कहता हूँ। गोयम ये गुफ्तन मस्दर से, गुफ्तन का माना है कहना और गुफ्तन से फेल मुदारे वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, गोयम मैं कहता हूँ। चुबीनम हाले तो जब मैं तेरा हाल देखता हूँ, यानी जब मैं तेरा ऐसा हाल देखता हूँ कि तू दुनिया के लिए मारा मारा फिरता है, तू दुनिया की मोहब्बत दिल में बसाए हुए है, जब मैं तेरा ऐसा हाल देखता हूँ, आ वक्त गोयम तो फिर मैं उस वक्त कहता हूँ, यानी ज़बान हाल से पुकारता हूँ। क्या पुकारता हूँ कि यक तिफले सुवे चाहे दवानस्त, कि एक बच्चा, तिफल का माना बच्चा, यक का माना एक, कि यक तिफले कि एक बच्चा, सुवे सुवे का माना तरफ, चाहे चाह का माना होता है कुआं, चाह का माना कुआं, कि एक बच्चा कुएं की तरफ दवानस्त दौड़ रहा है, दवानस्त दौड़ रहा है, दवीदन का माना दौड़ना, कि एक बच्चा है जो कुएं की तरफ दौड़ रहा है। तो बाबा चलासी आप कहते हैं कि जब मैं तेरा ये हाल देखता हूँ तो मैं ज़बान हाल से पुकारता हूँ और कहता हूँ कि ये एक बच्चा है, यानी नादान है, नासमझ है, जो दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार है। गोया ये एक गड़े की तरफ भाग रहा है, अपनी जिंदगी को तबाह कर रहा है, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, अपनी जिंदगी को गर्क कर रहा है, कुएं की तरफ भाग रहा है, यानी गड़े की तरफ जा रहा है, यानी तबाही की तरफ भाग रहा है। तो ये मैं ज़बान हाल से पुकारता हूँ। चुबीनम हाल तू आ वक्त रफ्तम आ वक्त गोयम, जब मैं तेरा ये हाल देखता हूँ तो उस वक्त मैं कहता हूँ कि यक तिफले सुवे चाहे दवानस्त, कि ये एक बच्चा है जो गड़े की तरफ, कुएं की तरफ भाग रहा है। चलते हैं आज के तीसरे शेर की तरफ। तीसरे शेर में बाबा चलासी आप लिखते हैं, चुमीदानी के लाजम हस्त मुर्दन चिरा नादा न कर दी कार करदन। आप लिखते हैं कि चू मीदानी जब तू जानता है, चू का माना जब, मीदानी तू जानता है, ये दानिस्तन मसदर से फेले हाल वाहिद हाजिर का सीगा है, मीदानी। दानिस्तन का माना जानना और दानद इससे फेल मुजारे का सीगा आता है, दानद दानंद दानी, और शुरू में मी लगा तो ये फेले हाल बन गया, मीदानी। चू मीदानी जब तू जानता है कि लाजिम है, यकीनी है, जरूरी है, क्या, मुर्दन मरना, जब तू जानता है कि मरना जरूरी और यकीनी और लाजमी है, चिरा नादा तो फिर क्यों ए नादा न कर दी, तू नहीं करता कार्य करदन करने वाले काम। और करने वाले काम क्या है, यानी आखिरत की तैयारी करना, आखिरत के लिए मता इकट्ठी करना, आखिरत के लिए सामान इकट्ठा करना, आखिरत के लिए जखीरा जमा करना, यानी ये करने वाला काम था जबकि तू मोहब्बत दुनिया में गिरफ्तार हो चुका है। इसलिए फरमाता है चुमीदानी जब तू जानता है कि लाजिम हस्त, लाजिम है, क्या लाजिम है, मुर्दन मरना, कि मरना लाजिम है, यकीनी है, यानी बिल आखिर मौत है,
इंसान जितना भी जी ले बिल आखिर मौत है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, बिल आखिर उसने मौत का जायका चखना है, बिल आखिर उसने मरना है। तो आप फरमाते हैं चिरा नादां न कर दी कार करदन, तो फिर ए नादां तू क्यों करने वाले काम नहीं करता। उम्मीद है कि तीसरा शेर भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलते हैं आज के चौथे और आखिरी शेर की तरफ। आखिरी शेर में बाबा चलासी आप लिखते हैं जेतू आ मूरे नादानिस दाना के दाना दाना दर सुराख बुर्दन। अब कहते हैं कि जेतू तुझसे, आ वो मोर यानी चूंटी, ना दानस्त यानी वो नादान चूंटी, और इससे मुराद यानी छोटी चूंटी, दाना अक्लमंद, दाना का माना अक्लमंद। जेतू तुझसे आमूरे नादानिस्त, वो नादान यानी छोटी चूंटी, दाना वो अक्लमंद है। तुझसे तो वो चूंटी, वो छोटी चूंटी अक्लमंद है और होशियार है कि दानत कि जो जानती है, दाना दाने को दर सुराख, सुराख में बुर्दन ले जाना, जो जानती है दाने को सुराख में ले जाना। दाने को, दाने से मुराद अपनी मता को, अपने सामान को, और सुराख से मुराद मंजिल है, सुराख से मुराद मंजिल है। यानी तुझसे तो वो नादान यानी वो छोटी चूंटी अक्लमंद है और होशियार है, जो अपने दाने को सुराख में ले जाना जानती है, यानी अपनी मता को अपनी मंजिल तक पहुंचाना जानती है। तुझसे तो वो छोटी चूंटी वो अक्लमंद है। अल्लाह जल्ल मजदुल करीम ने सूरह अनआम आयत नंबर 160 में इरशाद फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा व मन जाअ बिस्सय्यिअति फला युज्ज़ा इल्ला मिस्लहा व हुम ला युज़लमून। जो एक नेकी लाएगा तो उसके लिए बतौर अजर उस जैसी 10 नेकियां हैं, और जो कोई एक गुनाह लाएगा तो उसको उस जैसे एक गुनाह के सिवा सजा नहीं दी जाएगी और वो जुल्म नहीं किए जाएंगे, यानी उन पर किसी किस्म का जुल्म नहीं किया जाएगा। तो यहाँ अल्लाह जल्ल मजदुल करीम ने फरमाया मन जा अबिल हसनाती फलाहु अशरु अमसालिहा, यानी जो शख्स भी एक नेकी लाएगा, तो यहाँ नेकियां करने का हुक्म नहीं कि जो नेकी करके आएगा, बल्कि फरमाया कि जो नेकी लेके आएगा, मेरी बारगाह तक नेकी लेके आएगा, तो उसके लिए उस जैसी 10 नेकियां हैं, उसके लिए फिर उसकी मिसल यानी 10 गुना अजर है, जो अल्लाह पाक फरमाता है जो मेरी बारगाह तक नेकी लेके आएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नेका माल करते हैं, नेकियां करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ऐसे आमाल करते हैं कि जिनकी वजह से उनकी नेकियां इधर की इधर ही रह जाती है और वो बर्बाद हो जाती है और वो ख़त्म हो जाती हैं। तो जबकि अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि उसके लिए खुशखबरी है, उसके लिए 10 गुना अजर है और उस जैसी 10 नेकियां हैं। मन जा अबिल हसनती, जो नेकी मेरी बारगाह तक लेके आएगा। तो अब खुद सोचें कि क्या हम वो लोग नहीं कि जो नेकी करके एहसान करके दूसरों को जतलाते हैं, क्या हम वो लोग तो नहीं कि जो नेकी रियाकारी की वजह से करते हैं, क्या हम वो लोग तो नहीं कि जो नेकी करते हैं इसलिए ताकि लोग हमें नेक और अच्छा गुमान करें, क्या हमारा शुमार उन लोगों में तो नहीं होता। हमारी नेकियां कैसी हैं, हर कोई बंदा खुद अपनी नेकियों पर जायज़ा ले, हर बंदा खुद अपनी नेकियों का जायज़ा ले कि हमारी नेकियां किस किस्म की हैं और नेकी करते वक्त हमारी नीयत क्या होती है और हमारी नेकियों में किस कदर खुलूस और इखलास होता है और किस कदर लिल्लाहियत होती है और किस कदर अल्लाह पाक का खौफ होता है और अल्लाह की रज़ा मकसूद होती है। हर बंदा खुद अपनी नेकियों पर और अपने आमाल का खुद जायज़ा ले। तो उम्मीद है कि आज के चारों अशार आपने अच्छे तरीके से समाअत किए होंगे, अच्छे तरीके से समझे होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।